پاکستان کے موجودہ حالات پہ آپ نظر رکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں رکھ رہا ہوں۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ الیکشن جلد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جلد ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے جلد از جلد پاسبل۔ اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ کا لا پاس کیا تھا، آپ اس پہ موجودہ حکومت کا اسٹانس کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ موجودہ حکومت اس کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے، لیکن میری رائے میں اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب۔ الیکشنز کب ہونے چاہیے؟ As soon as possible. ای وی ایم مشینز کا استعمال، Sorry? ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہمارا حق ہے یہ، اور تاکہ کوئی بے ایمانی نہ ہو سکے، بالکل ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ بالکل ہونا چاہیے، ہمارا رائٹ ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہماری جان پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمیں بالکل ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب۔ ان کے ووٹ کا حق ضرور دینا چاہیے۔ اگر ہم ڈالرز دے سکتے ہیں تو ہم ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم ان سے زیادہ پیٹریوٹک ہیں۔ الیکشنز کب ہونے چاہیے؟ جلد از جلد، کیونکہ اگر جلد از جلد نہ ہوئے تو پھر تو بس آپ دیکھ ہی رہے ہیں آج پاکستان کا کیا حال ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرور ہونی چاہیے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے 5 سے 7 دن میں یہ کال کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں جلد ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے، کیونکہ آج جو ملک میں ہوا ہے اس کو دیکھ کے ظاہر ہے سب پریشان ہیں کہ یہ خون بہا، 5 لوگ کی موت ہوئی، شہید ہوئے۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے۔ ای وی ایم مشینز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کا استعمال شاید یہ گورنمنٹ نہیں کرنے دے، کیونکہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ ایز اے پاکستانی اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، تو آپ یو مسٹ ووٹ فار دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری۔ جب نواز شریف کے صاحبزادے جو ہیں وہ سعودی میں جا کے یہ جو ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں الیکشنز کیا ضروری ہیں؟ دیکھیے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مسئلے کا حل الیکشن ہی ہے۔ ابھی جو پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور سب کو پتہ ہے کس طریقے سے آئے ہیں وہ لوگ، اور یہ حد بد انتظامی اس وقت جتنی بھی قتل و غارت ہو رہی ہے سب انہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، ان کے وزیر داخلہ کے ہاتھوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم الیکٹرک ووٹنگ مشینز استعمال ہو سکتی ہیں آئندہ آنے والے الیکشنز میں، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ پروون ہے، دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ جن کو نقصان ہے وہ صرف اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ الیکشنز ہونے چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے، جب ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ اس سارے پرابلم کا حل ہی الیکشن ہے۔ الیکشن میں پتہ چل جائے گا کون اچھا۔ ای وی ایم مشینز کا استعمال، ای وی ایم مشین کا استعمال جو ہے اس وقت دیکھیں پاکستان میں جو بھی نئی چیز آتی ہے نا، تو اس کے لیے شروع میں ٹیتھنگ پرابلمس ہوتے ہیں۔ سو مے بی ان دا فرسٹ الیکشن آپ کو کچھ تھوڑے سے ٹیتھنگ پرابلم نظر آئے، بٹ ایونچولی آئی تھنک دس از دا اونلی سولوشن۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا جو ووٹنگ رائٹ دیا ہے عمران خان نے، آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانی تو ہے، اسی لیے بالکل ہونا چاہیے۔ الیکشن کب ہونا چاہیے محترمہ؟ ایز سون ایز پاسبل، جیسے انہوں نے بولا، کیونکہ بہت زیادہ ٹرموائل میں ہے کنٹری، اور اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے وی نیڈ پراپر گورنمنٹ، وی نیڈ گورنمنٹ وچ از الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ عمران خان کی حکومت نے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس کا لا پاس کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت، موجودہ حکومت اس کو چلنے دے گی؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میری رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان ہوتے تو
ये पॉसिबल था, लेकिन ये जो हुकूमत है ये 12-14 पार्टियों की हुकूमत है और तमाम के तमाम ये चोर हैं। इनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ये लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक से, इनका सिर्फ इंटरेस्ट अपना है। और ये तमाम के तमाम चोर हैं, जितने भी जो पार्टी हैं 12 या 14 जो भी हैं, सब के सब चोर हैं। ये लोग कभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उनको पैसे नहीं मिलेंगे और ना उनका कोई फ़ायदा होगा। के मौजूदा हालात आजकल काफ़ी क्योस नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा या होना चाहिए? जहाँ तक आपका सवाल है कि होना चाहिए तो होना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं और जो हमारा माजी का ट्रैक है वो देखते हुए और हमारे सियासतदानों की जो नफ्सियात है थोड़ा बहुत उसे समझते हुए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से होंगे। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोटिंग राइट का लॉ पास किया था, इस हुकूमत का इस पे क्या अप्रोच होगी और क्या समझते हैं आप? उसकी क्या समझते हैं, क्या ज़रूरत है? कतई नज़र इस बात के कि इमरान खान का मैं हामी हूँ या मुखालिफ हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम था। जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लेके इतना फ़ख्र करते हैं कि साहब वही हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की, तो उन्हें वोटिंग राइट्स क्यों नहीं देते? जब आप फ़ॉरेन से ला के मुशीर बना सकते हैं और आप फ़ॉरेन तमाम चीज़ों पर इज़हार करते हैं अपनी बेहतरी के लिए, तो अपने वोट के लिए आप क्यों इन पर इज़हार नहीं कर सकते? एक अच्छा कदम था और ये बिल्कुल होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात बड़े गैर मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं, सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी। तो आपकी क्या राय है, इलेक्शन होने चाहिए और कब? हाँ, इलेक्शन होना चाहिए प्रोवाइडेड दे आर प्रॉपर यानी क्लीन। अगर सही हो इलेक्शन तो फिर तो ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि ऑनलाइन इलेक्शंस की बातें होती रही माजी में, तो क्या वो मुमकिन है? कौन सी बातें आप कह रहे हैं? ऑनलाइन इलेक्शन। हाँ, ऑनलाइन इलेक्शन में ये है कि मैं समझता हूँ कि जो बाहर रहने वाले हैं उनको हक मिलना चाहिए वोटिंग का, और अच्छा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और रादर वोटिंग मशीन्स शुड। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नज़र रख रहे हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि ऑनलाइन वोटिंग के क्या इम्कानात हैं? अभी जल्दी तो नहीं है, लेकिन शायद कभी ये प्रोसीजर बना ले हमारे पाकिस्तान का, यानी अभी तक तो नहीं है। अच्छा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट्स के सिलसिले में आपकी क्या राय है? उनको मिलना चाहिए और कोई ना कोई तरीक़ेकार इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए कि उनका वोटिंग जो है ना वो आउट किया जाए। कब होने चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब बदमाशी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि मामला आर या पार हो। ईवीएम मशीन्स के बारे में क्या राय है आपकी? वो तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वोट दे सकें। हम हैं तो पाकिस्तानी, चाहे कनाडा में हम कई सालों से रह रहे हैं, 30-35 साल 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारा जड़ें तो वहीं की हैं। हमको क्यों नहीं हक होना चाहिए कि हम यहाँ से बैठ के वोट डालें? इमरान खान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट दिया था जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दिया था, जाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बिल्कुल, वो तो बहुत, वही तो, मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें तो हक चाहिए ना। ये वो बदमाशों को मालूम है कि उनको कोई नहीं वोट डालेगा पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि वो मशीनें इंस्टॉल हों और लोग वोट दे सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस कब होने चाहिए? As soon as possible. It's government for the people, by the people. Let's hear what the people are asking for. That's what democracy is all about, right? ईवीएम के बारे में क्या राय रखते हैं? ईवीएम के बारे में EVM? जी,
electronic voting machines. machine for local. I'm in the tech sector, so I can tell you for the government for local, it replaces a lot of the paper systems. It's a fantastic system. इंडिया में हो रहा है, बाकी सारी दुनिया कर रही है. लोग SMS पे वोट कर रहे हैं. हमारे तो लोग यहाँ से कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है वोट डालने, तो जर्मन कहते हैं कि क्यों तुम लोग यहाँ से बैठ के नहीं डाल सकते. लाइक ऑफिस में उनसे कहो जी छुट्टी चाहिए, वोट डालने जाना है. वो कहते पागल हो गए. लाइक बैलेट वोटिंग, ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन डन to its death all over the world. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो पाकिस्तान पहली दफ़ा करने जा रहा है. इट्स अ ट्राइड टेस्टेड सिस्टम. दुनिया में कुछ 20 से ज़्यादा मुल्क है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है. इट शुड कम एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ये ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल जब भी आएगा इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द होल थिंग. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आप क्या कहते हैं, इलेक्शंस कब होने चाहिए? इलेक्शंस जो रेगुलेशन में है वो विदिन 90 डेज़ हो जाने चाहिए. ये पहली गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में जो इलेक्टेड नहीं है, अदर देन आर्मी. ये गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है, ये जो है वो एक पार्लियामेंट्री कू के थ्रू आई है. लिहाजा इसके लेजिटिमेसी के लिए जो है वो इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी है. बहुत शुक्रिया. कब होने चाहिए? जितने जल्दी हो, बिकॉज पाकिस्तान के जो हालत है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जितने जल्दी हो जाए. EVM मशीन्स के बारे में क्या राय है आपकी? वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जितने फ्रॉड होते हैं इलेक्शन में वो सब बच जाएंगे और इट विल जेन्युइनली रिफ्लेक्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया. आप क्या कहते हैं, इमरान खान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट दिया था उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल होने चाहिए. ओवरसीज पाकिस्तानी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विद ऑल दिस रेमिटेंसेस और उनका बेसिक राइट है. दे सपोर्ट इमरान खान. सो इन माय ओपिनियन दे डिजर्व टू हैव इट. एंड ये जो इनकी गवर्नमेंट है नून लीग की, उनको पता है कि कोई ओवरसीज उनको वोट नहीं देगा, तो ज़रूर होना चाहिए मेरे ख्याल से. बहुत शुक्रिया. इन 1 मंथ आई वुड बी लाइक 1 महीने में होने चाहिए. अब तो रुकना नहीं है. बहुत गुस्सा है पाकिस्तानियों को. इमरान खान ने जो वोटिंग राइट्स दिए थे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्या राय है आपकी? आई एम 100% फॉर EVMs. सारे रेमिटेंस हम भेजते, पाकिस्तान को खड़ा हम करते. अगर हमसे वोट छीनेंगे तो फिर नवाज शरीफ और उसके बच्चों को भी कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान में हमेशा हुकूमत करे और उनको प्लेट में रख के हुकूमत दी जाए. इट्स नॉट राइट. बहुत शुक्रिया जनाब. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोटिंग राइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ओवरऑल. तो उनको पूरा राइट मिलना चाहिए जैसे ही लोकल पाकिस्तानीज़ को मिलता है. EVM मशीन्स का इस्तेमाल? EVM इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल एरा. और मेरे अंदाजे से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को EVM के थ्रू फुल राइट्स मिलने चाहिए वोटिंग के लिए. इलेक्शंस कब होने चाहिए? इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल. बहुत शुक्रिया. इलेक्शंस कब होने चाहिए? as soon as possible, sir. EVM मशीन्स का यूसेज? Most important for overseas. जितना जल्दी इसको तैनात करें उतना बेहतर रहेगा. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोटिंग राइट? 100% होना चाहिए. Every human being deserves the rights. तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं हमें भी ये राइट्स मिलना चाहिए. बहुत शुक्रिया जनाब. कब होने चाहिए? इमीडिएटली, जितना जल्दी उतना बेहतर. EVM मशीन्स का इस्तेमाल कैसा आप समझते हैं? सॉरी? EVM मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूसेज होगा? 21st century टेक्नोलॉजी है. आई बिलीव इट्स द राइट वे टू गो. वोटिंग राइट्स ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में क्या राय है? मैंडेटरी. बहुत शुक्रिया. कब होने चाहिए? जल्द से जल्द हो जाने चाहिए. EVM मशीन्स का इस्तेमाल कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़रूरी है. आजकल के दौर में रिगिंग को कवर करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है. और इमरान खान ने जो वोटिंग राइट का लॉ पास किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उसके बारे में क्या राय है? वो तो डेफिनेटली मिलना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि जितनी रेमिटेंसेस वगैरह ये भेजते हैं, आपकी इकॉनमी आधी तो खड़ी ही रेमिटेंसेस के ऊपर है. तो अगर उनको राइट नहीं देना तो फिर किसको राइट देना आपने? बहुत शुक्रिया जनाब. होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए. कब? फौरन. EVM मशीन्स का यूसेज? Definitely. It will help? Of course it will help. It will crystallize the situation. इमरान खान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट दिया था, क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने. डेफिनेटली होना चाहिए. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, उनका बिल्कुल राइट होना चाहिए. बाहर रहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका स्टेक है पाकिस्तान में. बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया. इसका होने चाहिए? इमीडिएटली, yes sir.
जल्द से जल्द होने चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि EVM यूज़ करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। उसके क्या फ़ायदे होंगे? इसके फ़ायदे हैं कि हर चीज़ हकीकत से सामने आ जाएगी, कोई धांधली नहीं होगी जो हमेशा धांधली होती आई है, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगता है कभी किसी पे। तो ये आप देख लें कि जिस कंट्री में हम रहते हैं यहाँ भी इलेक्शंस होने वाले हैं एंड वी ऑल यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन हियर, तो रिज़ल्ट भी राइट वे आता है और कोई धांधली का चक्कर भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन पाकिस्तान में कब होने चाहिए? जल्द से जल्द। और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लगनी चाहिए और इस्तेमाल होना चाहिए? वाकई में लगनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका हो जाएगा वोटिंग के लिए। सेटअप होना चाहिए ताकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी मौका मिले। हम रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान में, हम हमारी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलती है वहाँ पे। सो दे आवर वोट नीड टू बी काउंटेड एंड देयर नीड्स टू बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें और हम बता सकें कि हम यहाँ पे खड़े हुए सब के सब इमरान खान के सपोर्टर उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। EVM मशीन्स के बारे में क्या राय रखती हैं आप? मैं ये सिर्फ जो है बोलना चाहती हूँ कि हम जो भी बाहर के पाकिस्तानी हैं उनको मतलब ये लोग ये जो है समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल फारिग हैं, और मतलब इस तरह की बात नहीं है। हम भी जो है पाकिस्तानी हैं और हमारे साथ भी मतलब हमारे दिलों में वही इमोशंस हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि हमारा बहुत दिल है कि हम यहाँ से बैठ कर इन्वॉल्व हों और जो है वोटिंग करें। पाकिस्तान में कब होने चाहिए? Right now, fair elections are needed to overcome all this uncertainty in Pakistan. Transparency should be ensured and it should be held right away without any further delay. ये बताएं कि EVM machines इस्तेमाल होनी चाहिए? 100%, because without EVM, the elections have been manipulated in the past, and the reasons some of the circles are against the EVM is because they want to do the same thing again. So in order to make sure that elections are fair and they are accepted by everyone, EVM should be definitely used in this election. इलेक्शन ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है जी। कब? Right away. और इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट का लॉ बनाया था। जी ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारा राइट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाले लोगों को हम सिलेक्ट करें, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इलेक्शंस ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। कब होना चाहिए? मेरे ख्याल से कल होना चाहिए था। माशाल्लाह। और ये बताएं कि EVM इस्तेमाल होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी करंट सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक हों या कोई भी डेवलप्ड नेशंस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनमें बिल्कुल ही जो वहाँ का जो दस्तूर है कि चीटिंग का वो एलिमिनेट हो सके, तो वो यूज़ होना चाहिए। कब होने चाहिए? फ़ौरन। आई अंडरस्टैंड 3 महीने लगेंगे इलेक्शन कमीशन को तैयारी करने में, तो ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट आए, थोड़े हालात संभले, बट एज सून एज पॉसिबल। 3 महीने से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। देखिए इन पिछले 2 महीने में क्या हो गया है, पाकिस्तान इज़ लिटरली ऑलरेडी ब्रोकन। वी कांट अफोर्ड मोर देन दैट, पॉसिबल ही नहीं है। और EVM मशीन्स के बारे में क्या राय रखती हैं आप? EVM मशीन्स, अच्छा पर्सनली आई नो कि उनकी टेस्टिंग हुई थी, क्योंकि मेरे जानने वाले ने खुद टेस्टिंग की थी। दे आर रेडी, दे आर वर्किंग। तो जो भी बात हो रही है कि वो तैयार नहीं है, सिस्टम नहीं है, सब झूठ है। फंडिंग का मसला है, फंडिंग हम कर देंगे। ज़रूरी है भाई, सबको पता है पाकिस्तान में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द पीपल हु कंट्रोल द इलेक्शंस, दिस इज एसेंशियल, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट EVM मशीन्स आर रेडी एंड दे आर वर्किंग। थैंक यू। इलेक्शन ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है जी। कब? राइट अवे। और इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट का लॉ बनाया था। जी ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारा राइट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाले लोगों को हम सिलेक्ट करें, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया। बताएं कि इलेक्शंस कब होने चाहिए? फौरी तौर पे दे शुड अनाउंस इलेक्शन राइट अवे, वी शुड हैव अ डेट so that we know like when the election imported requirement is going to be going away. अच्छा, इमरान खान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट दिया है वो कितना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम सबको राइट है, हम पाकिस्तानी है, मुल्क से बाहर रहते हैं तो क्या बात है, हम लोग वोट नहीं कर सकते। वी शुड हैव अ राइट टू वोट।
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इलेक्शंस ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए, मेरे ख्याल से कल होना चाहिए था। माशाल्लाह। और ये बताएं कि ईवीएम इस्तेमाल होनी चाहिए? देखें बिल्कुल होनी चाहिए, जो भी करंट सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक हों या कोई भी डेवलप्ड नेशंस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनमें बिल्कुल ही जो वहाँ का जो दस्तूर है कि चीटिंग का वो एलिमिनेट हो सके, तो वो यूज़ होना चाहिए। इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए? ज़रूर, कब? जितनी जल्दी हो सके। ईवीएम मशीन्स के बारे में क्या कहते हैं आप? कौन सी मशीन? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट्स के बारे में क्या राय है आप? बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए। आखिर हम लोग भी तो मतलब हैं बाहर पाकिस्तानी हैं और इतना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी हक होना चाहिए कि हम वोट करें और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ही जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इलेक्शन ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कब होना चाहिए? इमीडिएटली होना चाहिए। और ये बताएं झूठी कि हुकूमत है, झूठ से आए हैं, सारा झूठ गलत तरीके से इस मुल्क पे कब्जा किया इन्होंने, तो वो हमें मंजूर नहीं है। इमरान खान जो सच्चा आदमी है, करप्शन से पाक है हर किस्म की, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने की हुकूमत ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट दिया था, वो ज़रूरी है और होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, हमारा हक है, तो बहुत शुक्रिया। कि पाकिस्तान में इलेक्शन ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। कब होना चाहिए? फ़ौरन, जब भी हो सके। तो हम अभी आज़ादी मार्च कर रहे हैं, आज हमने शुरू किया है और जल्द से जल्द हम इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। ईवीएम ज़रूरी है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यस दे आर ज़रूरी, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और जो इस तरह के इलेक्शंस हो कि लोग अपने वोट डालेंगे, उनको पता हो कि वो काउंट हो रहे हैं और सही तरह काउंट हो रहे हैं। बहुत